Good morning. How are you all? I hope you all are would be fine. I'm your Apeksha Didi, and today I'm going to deliver to you the fourth chapter of your It So Happens book, The Treasure Within. Yes, so the treasure within, that you can identify what is the story about from the name, the treasure within. That means आपके अंदर, that is the inner soul. In your inner soul you have a big treasure, treasure of knowledge, treasure of art, treasure of lots of thinkings, treasure of creativity, and lots of other things. Okay, so everyone has a treasure in his inner soul. So today we are going to read the story of that one's someone special. So let's start. Are you ready? So start. Before you read, every child is a potential achiever and is different from others. As you listen every time that everyone is special, every child is special because he is unique. Because some childs like dancing, some likes singing, some likes art and craft, some like writing, some like reading, some like speaking. Everything, every children likes something new, something different. So everyone has their own potential in a different from other children, जो सबसे अलग होता है. लर्निंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लर्निंग एरिया भी हो सकता है, कोई और अलग इंटरेस्ट भी हो सकता है जो भी उन्हें पसंद हो. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज. हम एक इंटरव्यू रीड करने जा रहे हैं जो किनके बीच में है. इट इज बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा. बेला राजा इज द नेम ऑफ द हु इज टेकन टू द interview. She is from the resource center, the Valley School, Bangalore, and who's the Mr. Hafiz Contractor, one of the India's leading architecture. ये इंडिया के फेमस आर्किटेक्चर हैं जिनका नाम है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर. So let's start. First, Hafiz Contractor was an unhappy schoolboy. In the school timing of the Hafiz Contractor, he is not happy with the studies. He don't like to do the studies. He likes only playing and doing the pranks. He loved doing things but decided मैकेनिकल लर्निंग. उन्हें दूसरी चीज़ें करना बहुत पसंद थी लेकिन मैकेनिकल लर्निंग उनको अच्छा नहीं लगता था करना, पढ़ना अच्छा नहीं लगता था. मैथमेटिकल गेव हिम टू द शाय वर्ड्स. दैट मीन्स शी डोंट लाइक द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट. दैट मीन्स इट्स ऑल्सो गिवन द वाइब्रेशन इन अंडर हिज सेल्फ. वॉट इज प्रिंसिपल वन सेड हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली. एक बार उनके प्रिंसिपल ने उन्हें कहा और वो बहुत ज़्यादा डीपली उनके मन में बैठ गया. सो वॉट इज दिस? सो लेट्स स्टार्ट. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर. I used to have this terrible nightmare. मुझे बहुत ही बुरे बुरे दुखद स्वप्न आते थे, दुस्वप्न आते थे, मैं बहुत डर जाता था. Only now over the last 4 to 5 years, but वो अभी कभी कभी आना बंद हो. Last 4 to 5 years I never ever seen this type of the nightmares. It seems to have disappeared. That means अब आना बंद हो गए, disappear हो गए, खो गए हैं. So Bela Raja said, what nightmare are you thinking about? किन के बारे में आप बात करें, किन के बारे में आप कहना चाह रहे हैं. And why do you think it would disappeared now? And what is the meaning about that it disappeared now and early I see these type of nightmares? Hafiz Contractor. I used to get continuously nightmare about a pre-year of a math examination where I did not know anything. क्या कहते हैं वो कि मुझे ऐसे नाइटमेयर्स आते थे, ऐसे सपने आते थे कि मैं एक एग्जाम अपेयर कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट द चैप्टर. Now the psych must have gotten over. It do not have to think about the education and there is absolutely no time to get nightmare. और क्या हो कि अब फिर जब उन्हें समझ में आया what the psych mind, मतलब हमारी जो मेंटलिटी थी वो ऐसी बन चुकी थी और वो अब ख़त्म हो चुकी है. अब जो है मुझे उस एजुकेशन से उन चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बन चुका हूँ, अच्छा एक आर्किटेक्चर में बन चुका हूँ. तो वो सारे जो नाइटमेयर्स वो आना बंद हो गए हैं. नेक्स्ट वन. बेला राजा सेड, tell us something about your earliest memories in school. What is the question? Please share something with us about your school time. Hafiz Contractor. In the first and second year, जब मैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर में था, आई वॉज गुड स्टूडेंट. मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, अच्छा पढ़ता था. आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में गया, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडी. उन्हें स्टडीज़ करना अच्छा नहीं लगता था. आई यूज टू बी इंटरेस्ट इन गेम्स. वॉट थिंग्स दे इंटरेस्ट इन गेम्स, रनिंग, प्लेइंग जोक, प्रैंक, इन अदर थिंग्स. आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स. क्या करते थे वो कॉपी करते थे सारी चीज़ें. एग्जाम में उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता था. आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी एट. क्या सोचते थे कि यार कहीं भी से भी मुझे जो एग्जामिनेशन का पेपर मिल जाए और मैं क्या करूँ, उसको
सिर्फ उतना उतना ही मैं पढ़ाई कर लूँ, सिर्फ मुझे पढ़ना ना पड़े, वो ऐसा कुछ करते थे. एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स हैड बीन थ्रो आउट टू बी मी इन द क्लास बिकॉज दे हैव द शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस दैट they don't want to listen what the teacher said and what they want to taught. However, later one sentence spoke to me, my principal changed my life. But one time my principal told me something and it's completely changed my life. And what is this? When I approached an 11th standard, जब मैं 11th standard में गया, the principal called me and said, क्या कहा principal ने? Look here son, देखिए, आई हैव सीन यू फ्रॉम डे वन, मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ जब तुम छोटे थे. यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बट यू नेवर स्टडीड. आई हैव टेकन केयर ऑफ टिल टुडे. आप जो है अब पढ़ाई नहीं करते, मैं अभी तक मैंने आपका ध्यान रखा है. नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो डू इट योर सेल्फ. क्या कहते हैं कि अभी तक मैंने आपका ध्यान रखा है, लेकिन अगर आप इसी तरीके से करते रहे तो मैं आपका ध्यान नहीं रख पाऊंगा. ही टॉक मी फॉर 5 minutes. कितनी देर तक उन्होंने बात किया? 5 minutes तक उन्होंने उनसे बात किया. यू डोंट हैव योर फादर. क्या कहते हैं, आपकी पापा नहीं है, आपकी मम्मा जो है वर्क करती है और उन्होंने आपकी अभी तक की फीस सबमिट की है. और आप क्या करते हैं, आप सारा जो टाइम है वो गेम्स में इन्वेस्ट कर देते हैं. नाउ यू शुड राइज टू द ओकेशन इन स्टडी. अब आपको इन सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा और आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. आई यूज टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्स मैन. क्या थे? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन. आई हैड बीन सीनियर चैंपियनशिप फॉर सो मेनी ईयर्स. ही इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन एंड ही lead as a champion, as a captain in his team. It also was the cricket captain. Cricket captain रहे काफी टाइम से. I used to play every game. He knows to play every game, whatever the game that is cricket, hockey, volleyball, badminton, everything Hafiz Contractor knows. But that year I did not step out onto the field. But in the 11th standard, he never ever play any game and don't take a single step out of the class. I would go for prayers के लिए जाते थे एंड ऑल आई वुड बी वॉज ईट. आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी. ओनली खाते थे और पढ़ाई करते थे. आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास. नॉर्मली वो क्या करते थे, कॉपी करते थे तो पास हो जाते थे. बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC, जब वो SSC में थे, आई कुड नॉट डू दैट. लेकिन जब वो 11th स्टैंडर्ड का एग्जाम देते तब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. व्हेन आई गॉट अ सेकंड क्लास, उन्हें सेकंड क्लास वो आए, फर्स्ट नहीं आए, 50% उन्हें मिला. इन माई SSC माई प्रिंसिपल सेड, उनके प्रिंसिपल ने कहा, सन कंसीडर योरसेल्फ हैज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन. आप जो है यही मानिए कि आपको डिस्टिंक्शन मिली है. क्यों? क्योंकि आपने खुद के ऊपर से किया है. नेवर एवर यू कॉपी एनीवन, यू नेवर did any dishonesty, everything you put by your honesty. So this is my memory of my school day. This is the memory of the Hafiz Contractor. I did lost other things. उसने सब कुछ खो दिया. See, as far as my things are concerned, लेकिन वो इन बातों को नहीं भूल पाया. I can't remember. मुझे कुछ भी याद नहीं है. I forgot things very easily. मैं बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता हूँ. To remember, I have to see things as a photograph. मेरे लिए जो हर एक चीज़ एक फोटोग्राफ की तरह है. That means उसकी कुछ पिक्चर अगर हमारे सामने होती है तो हम उन्हें याद रखते हैं. आई रीड अ बुक. मैंने एक बुक पढ़ा था एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ. क्या करते थे, जब भी कोई बुक पढ़ते थे तो उसके फोटोग्राफ से उसे याद रखते थे. उन्हें बातें नहीं याद रहती थी, बट नॉट थ्रू माई माइंड. लेकिन मेरे माइंड में वो चीज़ें नहीं रहती थी. दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि वो कैसे वर्क करती है. बेला राजा सेड, वैन यू वर इन द स्कूल, जब आप स्कूल में थे, एंड यू वर डूइंग बैडली, जब आप बहुत बुरा कर रहे थे, डिड द टीचर्स पुल अप एंड हाउ डिड यू फील. आपके टीचर्स आपको ऊपर की तरफ लेके जाते थे, वो कैसा फील होता था. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप. मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है. आई यूज टू बी द इंटरेस्ट इन प्लेइंग. मुझे, क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट सिर्फ प्लेइंग था. वो मुझे पुशअप भी करते होंगे, लेकिन मुझे वो कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ एक जगह होता था, दैट इज प्लेइंग. आई वुड रिसीव कैनिंग एवरी वीक. और मुझे हर एक वीक जो है पनिशमेंट मिलता था. दैट इज द मीनिंग ऑफ द कैनिंग इज पनिशमेंट. Bela Raja said, when you knew that you had included the warmth of your teachers by not doing your homework or by behaving badly. आपको क्या होता था, मतलब आपको अच्छा लगता था जब आपके टीचर्स जो हैं आपको कैन करते थे, आप होमवर्क नहीं करते थे, आप बुरा व्यवहार करते थे. when you knew what you get a canning, आपको याद है कि आपको कब जो है कैनिंग मिला था, पनिशमेंट मिला था. what was the state of your mind, आपके माइंड का क्या स्टेट होता था जब ऐसा कुछ होता था. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर सेड, स्टेट ऑफ माइंड. उन्हें हंसी आती है. जस्ट लिफ्ट अप द हैंड. क्या करते थे, जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड वुड कैन यू. पनिश कर देते, बिट कर देते. इफ यू हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट. आई फील द बैडली बट आई फॉरगेट अबाउट इट. बिकॉज वाई, बिकॉज आई वॉन्ट टू गो एंड प्ले ओनली. दिस इज माई हॉबी. बेला राजा सेड, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर एंड द फीट नेट. आपको जो है इनसिक्योरिटी फील नहीं होती थी. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर से, आई वुड जस्ट इंटरेस्टेड इन द प्लेइंग एंड नथिंग एक्सेट्रा. मुझे सिर्फ प्लेइंग में इंटरेस्ट है और किसी भी चीज़ में नहीं.
I was most interested in funny pranks. I like to do pranks with other. One day I did not want to study. एक दिन उनकी स्टडी करने की इच्छा नहीं थी. So I created a distraction. मैंने सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया. For 1 hour और we played चोर पुलिस, और हमने 1 घंटे तक चोर पुलिस प्ले किया. Every Saturday we were allowed to go into town to see movies. Every week my teachers go with us for the movie time. So what I would do was have no lunch and collect money from 40-50 students. मेरे पास में लंच नहीं होता था, और मैं 40-50 स्टूडेंट से जो है मनी कलेक्ट करता था और उनके लिए टिकट्स लेकर के आता था. और बैग में मैं क्या करता था, उनसे क्या लेता था कि जो भी मुझे खाना होता था मैं उनको बोलता था आपके लिए टिकट लेके आऊँगा और मुझे जो है खाना आप दे दीजिए. आई वुड ईट माई हर्ट्स कंटेंट, और जो मेरा दिल करता था मैं वो खाता था. आई यूज टू बी द लीडर ऑफ गैंग. मतलब दैट मीन्स ही वॉन्ट टू बी अ लीडर ऑफ द गैंग. वी वुड हैव गैंग फाइट्स इन प्लान स्ट्रेटेजीज. क्या करते थे, स्ट्रेटेजीज बनाते थे, अलग अलग फाइट करते थे गैंग्स में. दिस थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन माई एकेडमिक्स बिकॉज आई नेवर एवर वॉन्ट टू डू एनी बुकिश नॉलेज. आई वॉन्ट टू डू pranks, interest in playing and other things. Students used to book my textbook for the following year. क्या करते थे, उनके जो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते थे उनकी टेक्स्ट बुक्स लेते थे. Why? Because office contractor never ever turn the pages of the books. Only one day before of the examination he turned the books, and the other days he never ever used the books. So the all books are in a very neat and clean condition. So other students also borrow the books from the office contractor. Second part, he stimulated on active teacher because he knew little French and less German. उन्हें फ्रेंच ज़्यादा आता था, जर्मन कम आता था, तो उन्होंने आर्किटेक्चर को चुना. ही वॉज ऑफ बिट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स. उनको जो है प्रैंक्स करने में दूसरों के साथ बहुत मज़ा आता था. वैन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वॉज नो लुकिंग बैक. और जब उनको एक आवाज़ आई तो उन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा. बेला राजा सेड, हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. अब आर्किटेक्चर की फील्ड में कैसे आए. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर. कॉलेज अगर आपको आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना होता था, नो बडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू इंटर. आपको 80 to 85% से कम मिलता था, आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते थे. आई हैड ओनली 50%. आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी. क्या चाहते थे, वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे. आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टॉट इट अप. उनकी आंटी ने उन्हें जाने नहीं दिया. देन आई डिसाइडेड वॉन्ट टू ज्वाइन द पुलिस. वो पुलिस फोर्स में जाना चाहते थे, बट उनकी मदर ने कह दिया डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन. वो हर मदर से ओनली डू योर ग्रेजुएशन. सो आई वेंट टू द जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे. कहाँ गए वो, जय हिंद कॉलेज बॉम्बे के. देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और अ जर्मन. नाउ आई हैव 2 ऑप्शंस, फ्रेंच और जर्मन. तो आई स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years. उन्होंने 7 years तक फ्रेंच पढ़ा था. आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ द फ्रेंच. क्या कहा उन्होंने, मैंने 7 साल तक फ्रेंच पढ़ा लेकिन मुझे फ्रेंच के 7 words भी नहीं आते थे. तो उन्होंने कहा कि मैं अब जर्मन पढ़ूंगा. सो ही चूज द जर्मन, बट हिज जर्मन टीचर डाइड. द कॉलेज टोल्ड मी, कॉलेज ने उनसे कहा कि इफ़ यू कुड चेंज द कॉलेज, या तो आप कॉलेज चेंज कर लीजिए या फिर आप जो है अपनी लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, आप फ्रेंच लीजिए. नाउ who would give me the admission in other college. अब उन्हें अदर कॉलेज में तो एडमिशन मिल नहीं सकता था. आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस. अब मैंने जो है वहीं पर जय हिंद कॉलेज में एडमिशन ले लिया. सो आई थॉट ओके आई विल टेक द फ्रेंच. उन्होंने फ्रेंच ले लिया एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन. उन्होंने फिर से फ्रेंच पढ़ना स्टार्ट कर दिया. आई लर्न इट फ्रॉम माई कजिन. उनकी कजिन से वो पढ़ते थे. शी वॉज एन आर्किटेक्चर्स वाइफ. उनके जो हस्बैंड थे उनकी कजिन के, वो जो थे आर्किटेक्चर थे. आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्चर ऑफिस टू लर्न फ्रेंच. उनकी जो सिस्टर थे, उनके जो हस्बैंड थे वो ऑफिस जाते थे आर्किटेक्चर के, तो वो वहाँ पर फ्रेंच पढ़ने जाते थे. बेला राजा सेड, वॉट इज दैट टू डिसाइडेड टू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्चर. आपने आर्किटेक्चर में जाने का कैसे डिसाइड किया. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर सेड, एक्चुअली इट वॉज हैपन क्वाइट बाई चांस. क्या कहते थे, वो बाय चांस हुआ, मैं जाना नहीं चाहता था. इन द आर्किटेक्चर्स ऑफिस, आर्किटेक्चर के ऑफिस में, आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल. क्या देखा उन्होंने कि एक बंदा जो है वो विंडो की ड्राइंग बना रहा है. अब विंडो डिटेल इज अ वेरी एडवांस ड्राइंग. विंडो की ड्राइंग बनाना जो बहुत आसान काम नहीं होता था. आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग. क्या कहते हैं उससे, ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर वो जो ड्राइंग बना रहा था कि आपकी ड्राइंग गलत है. दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन. आपने जो विंडो का ड्राइंग बनाया है इससे विंडो ओपन कैसे होगी. ही दैट हैड अ बैट विथ मी एंड द लेटर ही फाउंड दैट इंडीड ही ड्राइंग वॉज रॉन्ग. क्या उन्होंने उसे बैट कह के दैट योर ड्राइंग इज रॉन्ग. Okay, and at the last the result is that the one who's draw the drawing is really the drawing was wrong. My cousin's husband was surprised. उनके cousin के जो husband थे वो surprise हो गए. He asked me to draw a new specific things. उन्होंने उनको कुछ task दे के आप ये कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बनाइए. Which I immediately did. उन्होंने जल्दी से बना दिया. He asked me to design a house. He designed
आफ्टर दैट ही ड्रॉप इन द जॉइन आर्किटेक्चर। उन्होंने कहा कि तुम जो ये एजुकेशन जो कर रहे हो ग्रेजुएशन को उसे ड्रॉप आउट करो और तुम आर्किटेक्चर ज्वाइन करो। ही वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। उनके जो कजिन के हस्बैंड थे और जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर थे वो दोनों उनके प्रिंसिपल से मिलने गए। द प्रिंसिपल ने उन्हें वार्न किया कि आई वॉज अलाउड टू टेक द पार्ट इन द इंटरेस्ट इन, क्या कि यू हैव टू गिव द एग्जाम ऑफ द इंटरेस्ट एंड इफ यू फेल इन इट दैट you don't allow to join. Okay, so then office contractor got A plus in the exam and केक वॉक ऑफ 4 उनका रास्ता जो है बिल्कुल आसान हो गया। आई हैड नेवर मेड अ प्लान, उन्हें कोई इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, बट उन्हें पता था कि हाँ ऊपर से चीज़ें कैसी दिखती है। आई हैड नेवर नो वॉट अ सेक्शन वॉज, उन्हें नहीं पता था कि कोई सेक्शन क्या होता है। आई वी कुड अ प्लान वॉट इड यू लुक लाइक, उन्होंने कहा कि बस हम जो दिखता है उसे ही हमें प्लान करना है। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट द डे, उन्होंने फर्स्ट क्लास में जो है हर एक चीज़ को पास किया। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग कम फॉर व्हाट आई यूज टू प्ले इन ड्यूरिंग द स्कूल, क्योंकि ये सब मुझे उससे मिला जो मैंने क्लास में प्ले किया, जो मैंने ड्यूरिंग स्कूल मैंने जो सीखा उन सब से। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराना डिवेचा, मेरा एक दोस्त था उसका नाम था बहराम डिवेचा। वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन बिटवीन फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स, वो हमेशा वो दोनों कॉम्पिटिशन करते थे जिसमें वो अलग अलग फोर्ट्स जो है गन्स एमिटेशन अलग अलग चीज़ों की ड्राइंग करते थे, कॉम्पिटिशन लगाते थे कि कौन जल्दी और अच्छा बना पाएगा। ईच ऑफ अस वुड डिजाइन समथिंग इन द एफर्ट्स टू बी डिफरेंट, और हम जो भी बनाते थे वो दूसरी चीज़ों से अलग होता था। इन द स्कूल व्हेन आई वॉज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, जो वो सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में थे, उनकी एक टीचर होती थी मिसेस गुप्ता। उन्होंने उसके जब भी वो स्केच बनाते थे तो उनकी जो टीचर थी वो कहती थी कि इफ़ यू आई नो दैट यू आर नॉट वेरी गुड इन द एकेडमिक पोर्शन बट यू आर अ गुड ड्राइंग, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, एंड दैट वन डे यू बिकम एन आर्किटेक्चर। उनकी टीचर ने कहा था। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट, मुझे नहीं पता था कि उस टाइम उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो सही थी। बाद में जब मैं आर्किटेक्चर बन गया तो मैं उनसे मिलने गया। बेला राजा सेड वाई डू यू थिंक यू डू नॉट लाइक स्टडीज, आपको ऐसा क्यों लगता था कि आपको स्टडीज पसंद नहीं है। वॉज इज बिकॉज ऑफ यू फील्ड यू कुड नॉट कोप, आपको क्यों सब चीज़ें करना अच्छा नहीं लगता था। कुड नॉट डील विद द करिकुलम, आप करिकुलम अच्छा नहीं लगता था, क्या इसका रीजन था। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर सेड आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी। साइंस एंड जियोग्राफी आई कुड डील विद, मैं उनके साथ में डील नहीं कर पाता था। मैथ्स वॉज वेरी बैड, मेरा मैथमेटिक्स बहुत बेकार था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडी, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ता था क्योंकि पढ़ना है, अदरवाइज मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वॉट दे टॉट मी टूडे, जो मुझे आज वो पढ़ाते थे, आफ्टर 2 days आई फॉरगेट दैट वॉट दे टॉट मी। आई डू नॉट बॉदर बिकॉज देर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड हियर टू बिगिन विद इन, मेरे पास ऐसा माइंड ही नहीं था जो मैं उन्हें याद कर सकूँ। बेड़ा राजा सेड डिड यू थिंक that what they taught in school was boring, or did you feel that once one understood the concept of that was being the taught you lost interest in the rest of the lesson। ऐसा तो नहीं कि वो जो आपको बता रहे थे उन चीज़ों का आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे थे और इसलिए आपको चीज़ें बोर लगने लगती थी। शायद अगर आपको इंटरेस्ट होता, आप उसकी कॉन्सेप्ट समझते तो आपको लेसन अच्छा लगता। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर सेड लिविंग इन द बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट, बोर्डिंग स्कूल में रहना एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम सिर्फ एक दिन के बाद दूसरे दिन सिर्फ हम रह रहे थे। नाउ डे देर आर सो मैनी टेस्टेड्स, उस समय बहुत ज़्यादा टेस्टेड हुआ करते थे। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्टेड वी यूज टू जस्ट कॉपीज, क्या कहते हैं हम टेस्ट वगैरह हम तो कॉपी करके भी पास हो सकते हैं। द टीचर टॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, हमें सिर्फ टीचर क्या कहते थे, हमें हमारा काम कंप्लीट करना है, तो वो तो हम कॉपी करके भी कर सकते हैं। बेला राजा सेड देयर इज अ कॉन्टिन्यूशन दैट गिफ्टनेस एंड लर्निंग डिसएबिलिटीज गो हैंड टू हैंड। ऐसा भी है ना कि आपके हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को पढ़ना अच्छा नहीं लगता हो, तो इसलिए ये चीज़ें जो है हैंड टू हैंड चलती है, एक के हाथ से ही दूसरे के पास में जाती है। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, आपको ऐसा लगता है कि आप पर अप्लाई होती है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर सेड वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, मेरी क्लास के वो ऐसे स्टूडेंट दो ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हमेशा आते थे, वो अभी एक बहुत ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। दे ऑल डिड सम ऑर्डिनरी जॉब्स। Bella Rara said, I have some across the situation in so many different places where people tell me that their class toppers are going there ordinary today। और ऐसे वो कहते हैं बेला राजा कि हाँ मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है जहाँ मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छी पोजीशन में, लेकिन उनकी क्लास में जो टॉपर्स हुआ करते थे वो कोई ऑर्डिनरी जॉब अभी कर रहे हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर सेड इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ देयर मेड इन स्ट्रीट स्मार्ट, कहते हैं कि अगर हम स्कूल में सिर्फ वो पढ़ते हैं जो पढ़ाया जा रहा है तो हम सिर्फ उस गली उन्हीं लोगों में हम अच्छे बन पाएंगे। आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग, हम करने से ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आई डिड नॉट ऑन माई ऑन देन वॉट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी, मैंने वो सब सिर्फ जो मुझे एकेडमिक नॉलेज, मैं आज जो भी हूँ मैं सिर्फ एकेडमिक नॉलेज की वजह से नहीं हूँ। बेला राजा सेड
दैट इज बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर. वो आपका कौशल है, वो आपकी पर्सनैलिटी है. यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन द मैनर यू वर कंफर्टेबली विथ एंड यू डिफ्लीट every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. देखिए, अगर आपने अपने मन में कुछ बना लिया है, आपने अपने मन में कुछ धार लिया है, आपने अगर उन नियमों को तोड़ दिया है जो आपको बंधन में बांधे रखते, तो आप वो सब कर सकते हैं जो आप आज कर रहे हैं. ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर सेड, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स. मुझे दूसरी चीज़ों में भी बहुत इंटरेस्ट था. फॉर एग्जाम्पल, वाइल इन द क्लास आई स्टार्टेड रनिंग आउटसाइड. अगर बाहर बारिश होती थी, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम ब्लॉक इट. क्या सोचते थे कि अगर बारिश हो रही है, बारिश का पानी सारा बह रहा है, तो उस पर डैम कैसे बनाया जाए. अगर डैम अगर बन जाता है, अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच द वाटर ऑफ डैम वुड बी एबल टू होल्ड. वो क्या देखते थे कि इतना पानी बह रहा है, अगर मैंने इसके ऊपर डैम बना दिया तो डैम कितने इंच का बनेगा, कैसा डैम बनेगा, उस डैम को बनने से कितना वाटर फ्लो रुक जाएगा. दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे. और ये उस समय के मेरे कुछ इंटरेस्ट हैं जो मुझे आज भी पसंद है. वेन स्टूडेंट लॉस्ट अ बटन बाय प्लेइंग और फाइटिंग. जब बच्चों के बटन जो है खो जाते थे एंड दे वुड कम रनिंग टू मी, वो दौड़ करके मेरे पास आते थे. आई वुड कट अ बटन. मैं चौक से उनके लिए बटन कट करता था और उसको जो है वहाँ पर उनकी जो शर्ट थी वहाँ पर लगाता था. बिकॉज इन अवर यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन इज टू मच इम्पॉर्टेंट. अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहते थे तो जो है हमें शाम में लंच नहीं मिलता था, डिनर नहीं मिलता था. तो दैट्स वाई द यूनिफॉर्म ऑफ हिज नीट एंड क्लीन पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एनी वन हैज लॉस्ट हिज बटन, ही कम विथ टू मी and I make a button with the chalk and I secure the students from the beating from the teachers. Bela Raja said, coming to the present, हम आज की बात करते हैं. How do you decide it is what the kind of literature you want to give a client? आप किसी क्लाइंट को किस तरीके से कोई स्केच बना करके दे देते हैं. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर सेड, I look at the client's face. मैं क्लाइंट के फेस पे देखता हूँ, उसके क्लॉथ्स देखता हूँ. वेन दी ही टॉक्स, वो किस तरह से मुझसे बात कराए, हिज प्रोनाउंसिएशन, हिज द वे ऑफ ईटिंग, हिज टेस्ट, एंड आई कैन रिलेट द पीपुल इन अ वे एंड आई रिलेट द पीपुल विथ हिज इंटरेस्ट. आई ड्रॉ द एंड कंफर्टेबली आई ड्रॉ अ ड्रॉइंग एट द टाइम स्केच एंड आई हैंड ओवर दिस स्केच टू द माई कलीग्स. वो उसी टाइम उस स्केच को बनाते थे, उनकी सारी चीज़ों को देख करके, और अपने जो स्पॉट जो मेन जो अपने कलीग्स होते थे उनको सेंड कर देते. आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और फिर वो बना करके मैं उन्हें देता था. बेरा यू डिड इंटेंशनली, आप एट ए टाइम उन चीज़ों को बना लेते हैं. आप इसको जैसे कॉल इट इंस्टिंक्ट, इसे इंस्टिंक्ट कहते हैं कि उसी टाइम को उस चीज़ को कर लेना. कॉल इट अर्थमेटिक, इसको आप अर्थमेटिक कह सकते हैं, इसको आप व्रत कह सकते हैं कि उसी टाइम किसी को करना है. ये अर्थमेटिक भी है. इट्स ऑल्सो लाइक द मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स भी है. पुटिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, दैट मीन्स all subjects are included in the architecture, not a single subject. Mathematics, sociology, arithmetic, psychology, everything is here. Sketch from all that is mathematics, और इन सभी को बना करके एक पेज पर उतार देना ही मैथमेटिक्स है. How we almost come to the full circle where Mr. Contractor had derived his own interpretation of mathematics, or that is the mathematics of Hafiz Contractor, that he conclude everything in the mathematics of the nature of his client, taking it from a subject he hated to a subject he now loved dealing with. और वो सब्जेक्ट जो उन्हें स्कूल टाइम में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मैथमेटिक्स, अब जो उन्हें वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा था. क्यों? क्योंकि उसी सब्जेक्ट को उन्होंने अपने स्केचेस में लाया था. ओके, सो आई स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर. Just read it this chapter, try to understand what is the conversation between the Bela Raja and the Hafiz Contractor. Okay, read it the chapter, try to find out the hard words in your in the dictionary. Stay home, stay safe. Thank you, have a nice day, bye.